So good morning everyone. Today we are going to see the next part of our lesson. In the last session already we discussed about the what is the meaning of a social health, which factors affecting the social health, and which factors are responsible for maintaining the good social health. And the last one, so which factors are responsible for disturbing the social health. So already we discussed the mental illness. So today in this session we discuss about the next one factors disturbing the social health is addiction. तो एक जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या बोलो तो एडिक्शन और अपनी सोशल हेल्थ को क्या करता है, डिस्टर्ब कर लेता है. इसके बारे में हमें जान लेना है. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मीन बाय एडिक्शन या डिफाइन एडिक्शन. सो लेट्स सी. सो एडिक्शन the psychological and physical inability to stop consuming chemical drugs activity or a substance even though it is causing psychological and the physical harm. So addiction is a psychological and physical harm. Addiction में क्या होता है का psychological और physical harm है. इसमें the inability to stop the consuming. जब हमें उसकी आदत लगती है तो हमारी बॉडी उसको inability क्या करते हैं उसको to stop the consuming like drugs and the harmful substances. Like example of wine and drugs जो अलग अलग प्रकार जो हर केमिकल रहते हैं उनकी आदत लगने के बाद उनका फॉर एग्जाम्पल chewing the tobacco, cigarette, so these are the different kinds of the addictions. So understand? Now see in adolescent age group, adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and the teachers. So we know that in the age of adolescent, so adolescents always prefer the company of friends and follow their good and bad habits instead of following advice of parents and the teachers. Due to the tremendous pressure of adolescents, children in their early ages try to upon tobacco, cigarette, hookah, alcoholic drinks, drugs, etc. Due to the tremendous pressure of peer groups, the children start taking the tobacco, next one cigarette, hookah, alcoholic drugs, alcoholic drinks and drugs. एडोलेसेंट एज में जो पीयर ग्रुप रहता है मोस्टली अपने दोस्त के प्रेशर की वजह से वो एक बुरी आदत की तरफ क्या बोलते खींचा जाता है. जिस तरह से क्या खाना, टोबैको चिविंग कर लेना, सिगरेट है, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है एंड ड्रग्स एक क्या लेना बोलो तो स्टार्ट किया जाता है. ड्यू टू देयर पीयर ग्रुप प्रेशर और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडिंग लिविंग और एज इनिशिएशन ऑफ एल्डर्स. However, it may lead to addiction to such a deadly substance, temporarily intoxicating drugs of a plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system. Now see, when the peer group start chewing the different kinds of tobaccos and taking the drugs, it's a very dangerous for the human body. जब कोई ह्यूमन बॉडी एक डिफरेंट काइंड्स का अपना जो एक ड्रग्स लेना चालू कर देता है या कोई अदर हार्मफुल सब्सटेंस लेना चालू कर देता है, so it's very harmful for the nervous system. Earlier we have studied the carcinogenetic effect of a tobacco containing substance on mouth and the lungs. So we know that when we chewing the tobacco, it causes the cancer. And mouth and the lungs, जब हम तंबाकू को चेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, so it's very harmful to our body. तो हमारी बॉडी के लिए क्या एक बहुत ही वो हार्मफुल है. You are suffering from the cancer. If anybody chewing the tobacco, so after some days is suffering from the tobacco. So understand, this one is a addiction is a factor is responsible for disturbing the social. जब हमें कोई बुरी आदत लगती है, बुरी आदत लगने की वजह से हमारा जो सोशल में सोसाइटी में जो रिलेशंस है
वो क्या थोड़े से डिस्टर्ब होने के क्या है चांसेस रहते हैं। तो ये एडिक्शन लगने का जो एज रहता है मोस्टली कहाँ पर रहता है, वो तो एडोलेसेंट एज में क्या है, एडिक्शन की क्या हो तो आदत लगना इस तरह हो जाते हैं, जिस तरह से सिगरेट पी लेना या टोबैको च्यूइंग कर लेना या शराब पीना स्टार्ट कर देना। सो ऑल दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर very dangerous for our health, mostly affect on the nervous system. If any person continuously taking the alcoholic drinks, अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली अगर अपना अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता है, सो मोस्टली इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, उसका ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर होता है, तो उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका क्या है इफेक्ट हो जाता है। नाउ सी, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन, तो एडिक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हमें जान लेना। So what are the physical effects of various addiction on the human? तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो अलग अलग तरीके जो एडिक्शन रहते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हमें जान लेना है। सो व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एडिक्शन ऑन ह्यूमन। So what are the physical effects? What are the physical effects? What are the physical effects of various addictions? Various addictions on human. तो हमें देख लेना है। सो व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एडिक्शन ऑन द ह्यूमन, जो हमें बुरी आदत लगती है जिस तरह से सिगरेट पी लेना, टोबैको च्यूइंग कर लेना, शराब पीने की आदत लगना, तो उसका ह्यूमन के ऊपर फिजिकली क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हमें जान लेना है। ए पर्सन में गेट एडिक्टेड टू वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ए पर्सन में एडिक्टेड टू वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, टीपीसी। जो पर्सन्स को एक आदत लगती है तो उससे आदत लगती है बोलो तो उसमें क्या फर्स्ट मानिए सर, तो एडिक्टेड ए पर्सन में गेट एडिक्टेड टू वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस, like alcohol, tobacco, cigarette, गुटखा, etc. A person may get addicted to various harmful substances like alcohol, tobacco, cigarette and the गुटखा। जो इंसान को आदत लगती है तो किसकी आदत लगती है, तो ये क्या है, अल्कोहल पी लेना, टोबैको च्यूइंग कर लेना, सिगरेट को ये कर लेना और गुटखा खा लेना, या इंसान से क्या होती है बुरी आदत। नाउ सी, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ लिक्विड लीड्स टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन। नाउ सी, इफ एनी पर्सन कंटिन्यूअसली टेकिंग द ड्रिंक्स, it's mainly effect on the brain, effect on the nervous system and decrease the efficiency of a nervous system. Then if any person taking continuously drink, so mainly effect on the nervous system, decrease in the efficiency of a nervous system, decrease in efficiency of nervous system, and liver, and mostly effect on the liver and reduce the lifespan of the person, and reduce the lifespan of the person, If any person continuously taking the drinks and liquor, so mostly decreasing the efficiency of a nervous system and liver, and also reduce the lifespan of the person.
उसका जो लाइफ का टाइम हो स्पैन है वो भी उसका क्या हो तो कम हो जाता है अगर वो कंटिन्यूसली अगर क्या हो तो ड्रिंक्स लेता है। उसी this can help her divert her mind from the issues troubling her. If required, I will make her consult a professional counselor and discuss her conditions. ध्यान रखो, अगर उसको मोस्टली इफेक्ट अगर उसका हो जाता है उसको हमें क्या है अच्छे डॉक्टर के पास को दिखाना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है उनको ये कर लेना है। Next, temporarily intoxic drugs of a plant's origin as well as some chemicals can permanently damage the human nervous system, muscle system, and the heart. Now, see, there are different kinds of drugs are mostly effect on the nervous system, muscle system, and the heart. जो हम अगर डिफरेंट टाइप्स के अगर उसको हम क्या करेंगे ड्रग्स अगर लेंगे तो मोस्टली इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम या मसल सिस्टम के ऊपर उसका क्या हो तो इफेक्ट हो जाता है, मसल सिस्टम एंड हार्ट See, the use of tobacco can lead to cancer of mouth and lungs. अगर हम कंटिन्यूसली अगर टोबैको को च्यूइंग करते हैं so can lead to cancer of mouth and lungs. Cancer of mouth and lungs. Cancer of mouth and lungs. Now see, the continuous use of tobacco can lead to cause the cancer of mouth and lungs. अगर हम कंटिन्यूस अगर टोबैको च्यूइंग करते हैं तो कुछ समय के बाद हम कुछ बीमारी से सफर करेंगे वो तो कैंसर एंड आपका जो कैंसर रहेगा वो क्या है माउथ कैंसर और लंग कैंसर होने के क्या हो तो चांसेस है। तो दीज आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एडिक्शन। जब हम कुछ अलग अलग एडिक्शन से सफर करते तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका क्या हो तो मोस्टली इफेक्ट किसका होता है तो नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है, हमारा लाइफ स्पैन भी क्या होता है रिस्क हो जाता है। इफ पर्सन सफरिंग कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग द टोबैको सो आफ्टर सम डेज कैन लीड टू द माउथ एंड द लंग्स कैंसर। अगर कोई पर्सन अगर कंटिन्यूसली अगर टोबैको खाता है तो कुछ समय के बाद उसको क्या हो तो माउथ कैंसर और लंग्स कैंसर होने के क्या हो तो चांसेस क्या है बढ़ सकते हैं। दिस आर द वेरियस फिजिकल इफेक्ट्स when the person suffering from the various addiction। जब कोई इंसान अलग अलग एडिक्शन से क्या हो तो सफर करता है उसके बॉडी के ऊपर क्या हो तो ये इफेक्ट होने के क्या है चांसेस रहते हैं। लिसन now see next one question, so what will we do if the child of your neighbor is addicted to tobacco chewing? why? अगर आपका कोई नेबर अगर टोबैको से अगर सफर करता है कंटिन्यूसली अगर टोबैको च्यूइंग करता है उसको हमें क्या करना चाहिए। सो व्हाट विल वी डू इफ द चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग? व्हाई? तो अगर आपका नेबर का कोई बच्चा अगर कंटिन्यूसली टोबैको च्यूइंग करता है तो उसको हमें क्या करना है एक कैसे करना है नाउ सी उसको हमें किस तरह से अवेयर करना है। Tobacco, chewing tobacco is very harmful for our health. Understand? अब वो क्वेश्चन पूछा है what will you do if the child what next question what will you do what will you do if the child of your neighbor if the child of our neighbor is addicted to tobacco chewing addicted to tobacco chewing and fire. Now see, if your neighbor child is suffering from the tobacco chewing, so what will you do? अगर आपका जो नेबर का बच्चा अगर टोबैको च्यूइंग कर रहा है उसको हमें कैसे समझना उसको कैसे अवेयर कर लेना। ध्यान में रखो, इफ आई फाइंड दैट द चाइल्ड ऑफ माय नेबर इज एडिक्टेड टू
टोबैको चिविंग, अगर मुझे दिखता है मेरे नेबर का बच्चा अगर वो टोबैको चिविंग कर रहा है तो उसको हमें किस तरह से अवेयर करना है। आई विल मेक हिम अवेयर अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द चिविंग टोबैको लाइक माउथ कैंसर, टूथ decay, gum disease. So I will make him aware about the health problems associated with the consumption of tobacco like mouth cancer, lungs cancer, tooth decay, gum diseases. उसको हमें क्या करना है, टोबैको चिविंग करने के बाद जो हमारे हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट्स करे उसके बारे में हमें क्या है समझाना है। सो मेक अवेयर हिम अबाउट द हेल्थ एसोसिएटेड with chewing tobacco like mouth cancer, like उसको हमें क्या करना है aware, I will make him aware about the health problems, about the health problems associated with chewing tobacco. तो फर्स्ट हमें इसको क्या करना है, मेक हिम अवेयर अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द चीविंग टोबैको। उसको हमें पहले क्या करना है, अवेयर करना है, उसको समझाना है। अगर आप कंटिन्यूसली अगर टोबैको लेते हैं तो आफ्टर सम डेज you are suffering from the mouth cancer, mouth and lungs cancer, tooth decay, gum diseases. etc. This will help him to make a decision about quitting tobacco. So after aware, जब उसको अवेयर करेंगे तो ये हम बताने के बाद कुछ समय बाद वो क्या उसके ऊपर क्या है कंट्रोल ला सकता है। This will help him to make a decision about quitting the tobacco. वो क्या है टोबैको छोड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। I will help him to quit tobacco by slowly reducing the use of tobacco every day till he quits it completely. So I will help him to quit the tobacco by slowly reducing the use of tobacco every day. जो everyday tobacco खाता है उसको हमें slowly क्या उसको क्या करना है, कंट्रोल कर लेना है। I will also make him talk to his family or friends regarding the issue so as to help him get rid of the habit. So we must be talk with family. उसके फैमिली के साथ हमें उसको क्या करना है, बात करना है और उनको समझाना है कि टोबैको अगर कंटिन्यूसली स्विंग करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो क्या रहेगा, बिल्कुल बहुत ही डेंजरस रहेगा। एलिशन अब तक हमने जो पढ़ा है, जो हमारी आदतें रहती है, एक बार अगर हमें आदत लगती है उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में अब तक हमें जानना है। ऐसा अगर कोई अपना नेबर हो, अगर अपना कोई दोस्त अगर किसी एडिक्शन से अगर सफर करता है, if your friend or if your neighbor are suffering from the addictions, we aware him about the health. उसको हमें क्या करना है, उसके बारे में उसको हमें बताना है, समझाना है। अगर आप किसी एडिक्शन से अगर सफर करते हैं तो उसका आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। So what are the harmful effects of different kinds and the various kinds of the addiction? Listen. So now to the next one factor is disturb the social health. अब हम क्या होते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपना इनक्यूरेबल डिसीजेस। ध्यान में रखिए, नेक्स्ट वन अपना रहेगा वो क्या है, इनक्यूरेबल डिसीज। So incurable disease are also disturb the social health. जो incurable अपने डिसीजेस हैं वो भी हमारा क्या हो तो सोशल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। फैक्टर्स लाइक नाउ सी द नेक्स्ट वन फैक्टर्स डिस्टर्ब द सोशल हेल्थ वन इज incurable disease. Number third, incurable disease. Incurable disease.
So factors like ignorance towards the people with incurable disease like AIDS, TB, leprosy, and mental disorders, as well as old persons, lead to increase in old age homes, and such factors are also may cause harm to the social health. There are different kinds of incurable diseases, and these diseases ignores towards the people इन आवर सोसाइटी. जब कोई पर्सन किसी बीमारी से सफ़र करता है, फॉर एग्जांपल एड्स हो, अपना टीबी हो, लेप्रोसी हो, अगर मेंटल डिसऑर्डर्स अगर उनको होता है, तो हमारे समाज में उनसे दूरी बनाने की हम क्या करते हैं, तो कोशिश कर लेते हैं. सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस? या राइट द गिव द नेम ऑफ 3 incurable diseases. The examples of incurable diseases. First one is AIDS. नेक्स्ट वन अपना है लेप्रोसी. लास्ट वन अपना है मेंटल डिसऑर्डर्स. मेंटल डिसऑर्डर्स. इफ एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसीजेस, अगर कोई पर्सन अगर इन बीमारी से अगर सफ़र करता है, तो उसका सोशल हेल्थ के ऊपर क्या हो तो डिस्टर्ब हो जाता है. उसका सोशल हेल्थ थोड़ा सा क्या हो तो डिस्टर्ब क्या है हो सकता है. This is the incurable disease and also disturbing the society. अब तक हमने जो पढ़ा था, first one is a mental stress, second one is addiction, and the last one is incurable diseases are responsible for the disturbing the social health. इन 3 कारणों की वजह से हमारा सोशल हेल्थ क्या हो तो डिस्टर्ब हो सकता है. फर्स्ट वन हमने पढ़ा था मेंटल स्ट्रेस, ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस. नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था एडिक्शन. लास्ट वन हमने पढ़ा है incurable diseases. Incurable diseases. Incurable diseases. So due to these factors, our social health are disturbed. इन factors की वजह से हमारा social health क्या हो तो डिस्टर्ब हो सकता है. Now see the next one. Communication media and the excessive use of modern technology. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया. So what are the effects of excessive use of modern technology and the communication media on the human health? आजकल हमारे ऊपर कम्युनिकेशन मीडिया का और एक्सेसिव जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर रहे हैं. Communication media and the modern technology. Communication media and modern technology. And modern technology. So nowadays, excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue to the viewpoint of a society. So nowadays, excessive, unnecessary, irrational use of modern technology and communication media is being sensitive issue through the viewpoint of a social health. आजकल हम अपने डेवलपमेंट के लिए जो एक्सेसिव इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, इसका हमारे सोशल हेल्थ के ऊपर क्या हो तो बहुत बड़ा क्या है इफेक्ट हुआ है. सो नाउडेज नंबर ऑफ पीपल्स आर excessive unnecessary irrational use of communication media and modern technology are most effect on our social health. Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of the surrounding. Nowadays, so every person spending the time with the cell phones for several hours are usually unaware about the surrounding. आजकल जो अपना सेल फोन है, जो मोबाइल से, इसमें हम बहुत सारा वक्त क्या हो तो बिता रहे हैं और हमारा क्या उसमें यूज करते समय हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का हमें क्या बोलो तो भान नहीं रहा है. दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड द लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ अ सोशल हेल्थ. नाउ सी
The excessive use of a cell phone, it is one kind of addiction. हद से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना एक क्या बोलते हैं बीमारी है, एक तरह की आजकल क्या बोलते हैं बीमारी हो चुकी है. दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड द लीडिंग एंडेंजरिंग ऑफ द सोशल हेल्थ. इसका ऊपर क्या बोलते सोशल हेल्थ के ऊपर क्या है बहुत बड़ा क्या बोलते इफेक्ट हो रहा है. द वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोमिया, forgetfulness, tinnitus, joint pains, and problems in vision may arise due to the addiction of a cell phone. Now see, excessive use of a cell phone are mainly effect on our body. So which physical problems are arises due to the excessive use of our cell phone. जब हद से ज़्यादा मोबाइल यूज करने के बाद इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है मेरे को. फर्स्ट वन इज टायर्डनेस. हमारा क्या होता है हम बहुत क्या हो रहे हैं थक जा रहे हैं. टायर्डनेस. नेक्स्ट वन इज हेडेक, इंसोमिया, इंसोमानिया. नेक्स्ट वन है अपना फॉरगेटफुलनेस, joint pains, awesome. Due to the excessive use of a cell phone, the various physical problems arises in the human body. First one is टायर्डनेस. ज़्यादा हम जब मोबाइल यूज़ करते सेल फोन यूज़ करते तो हम क्या होता है बहुत सारे थक जाते हैं. अपना हेडेक हो जाता है, इंसोम्निया हो जाना, या हमें भूलने की आदत हो जाना, या जॉइंट्स पेन में क्या होता जाता है कि हमारे तकलीफ हो जाएगी. Now see, more serious fact is those radiations penetrate the bones of a children more rapidly than the bones of the adults. Now see, nowadays children are also very interesting in the use of a cell phones, and these mobile radiations are mostly effect on the bones of a children as compared to the adult. जो आजकल जो बच्चे जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनका बच्चों की जो बोन्स के ऊपर उसका क्या होता है बहुत बड़ा क्या है इफेक्ट हो रहा है. पर्सन्स कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट बिकेम ए सॉलिटरी. ध्यान में nowadays persons are continuously using the computers and the internet became a solitary. They cannot establish harmonious relations with the relatives and other members of the society. ध्यान में रखो, ये persons continuously using computers and the internet, they suffering the solitude. वो अकेला अकेला रहने लगा है. जो पर्सन कंटिन्यूसली इंटरनेट यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है, तो आफ्टर सम डेज दे कैन नॉट एस्टैब्लिश गुड रिलेशन विद द रिलेटिव्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स. वो जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज करते, ज़्यादा इंटरनेट यूज करते, कुछ समय बाद उनको कौन सी बीमारी होती है बोले तो सॉलिटरी. बिकम ए सॉलिटरी, become a solitary. They cannot establish harmonious relations with the relatives and other members of the society. Habitually, they become self-centered and thereby they may develop problems like autism and selfishness. ध्यान में रखो, अगर वो कंटिन्यूसली अगर इसी प्रॉब्लम से अगर सफर करते तो कुछ समय बाद वो क्या होता खुद में पागल हो जाएंगे. ऐसा अकेला अकेला रह जाना, अकेले अकेले बातें करते रहना, वो सेल्फलेस हो जाना, ऐसे उनको बीमारी से क्या हो तो सफर करते. दे बिकम लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स. ध्यान में रखो, दे बिकम्स लेस सेंसिटिव टू अदर्स. क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स. अगर वो इस बीमारी से अगर सफर करते, दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स इन नीड एंड ही hence they also do not get it need. अगर उस बीमारी से अगर सफर करते हैं तो खुद वो क्या जाना तो सेल्फलेस हो जाएगा, दूसरों की मदद करने के बारे में वो सोचेगा भी नहीं. Understand? So nowadays the excessive irrational use of modern technology is mostly effect on the human beings. जो आजकल हम ज़्यादा जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें या सेल फोन यूज़ करें, इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या हो तो बहुत बड़ा क्या हो तो इफेक्ट हुआ. So today's stop here. We will continue on the next session. So in this session, I will discuss about the addiction and what are the harmful effects of addiction. And the next one,
what is meant by incurable diseases and what are the example of incurable diseases, how it is disturb the social health, and last one, what are the effects of communication media and the next one is modern technology. Okay, please stop here.